जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदनंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुनतीरा वनचारी जय यमुनतीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare,
Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare. Hare 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 Rama, Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare 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 Hare. Hare Jai Hare Krishna Radha Krishna Hare. Chandra Radha Krishna Radha Chandra Chandra Radha Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की की जय। जय। Jai बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। जय। Jai ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते Namo वासुदेवाय Bhagavate वासुदेवाय। Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम Om नमो भगवते Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय वासुदेवाय। Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम Om नमो Namo भगवते भगवते Bhagavate वासुदेवाय वासुदेवाय। Vasudevaya नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव Naram चैव Chaiva नरोत्तमं नरोत्तमं Narottama देवं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं Devim सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं Saraswati Vyasam ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। Jayamudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानन्दतिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। All glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का ये अध्ययन आरंभ करते हैं।
तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद छठा अध्याय, जिनका टाइटल है विश्व रूप की सृष्टि। 26वां श्लोक। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। आप सबको ये श्लोक विजिबल है? जी प्रभु जी, जी दिख रहा है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम् महान् दिष्णयम् उपाविशत् स्थितेन अंशेन येन असौ विज्ञानं प्रतिपादयते। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। सत्वं तस्य विनिर्भिन्नम् सत्वं सत्वं चास्य चास्य विनिर्भिन्नम् विनिर्भिन्नम् महान् देष्णयम् उपाविशत् महाधीष्णम् उपाविशत् महाधीष्णमुपाविशत् स्थितेन अंशेन येन असौ येनासौ विज्ञानं प्रतिपादयते। विज्ञानं प्रतिपाद्यते। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम् सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम् विनिर्भिन्नम् महान् देष्णयम् उपाविशत् महाधीष्णम् उपाविशत् महानीयमुपाविशत् स्थितेन अंशेन येन असौ चित्तेनांशेनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। विज्ञानं प्रतिपाद्यते। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम् सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नम् महान् देष्णयम् उपाविशत् महाधीष्णमुपाविशत् स्थितेन अंशेन येन असौ चित्तेनांशेनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। विज्ञानं प्रतिपाद्यते। जो भी भक्त इस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधीष्ण्यम् उपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं च विनिर्भिन्नं महान्धिषण्यम् उपाविशत् चित्तेनाशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यं चास्य विनिर्भिन्नं महानधीष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनाशो विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। शतम चास्य विनिर्भिन्नम महान्धिष्णायमुपाविशत् चित्तेनांशेन शयेनाशो विशत् विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे चित् कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्यं चास्य विनिवृन्नं महान्धिष्णुयुमुपाविशत् चित्तेनांशतेने येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्वं च अस्य विनिर्भिन्नं महानिस्तृणयमुपाविशत् चित्ते अंशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिष्णयमुपाश्रितः चित्तेन नाशेन येन नासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ पढ़ता हूँ। धन्यवाद। तत्वम चेतना, च भी अस्य विराट रूप की, विनिभिन्नम पृथक से प्रकट होकर, महान समग्र शक्ति महतत्व, धीष्ण्यम नियंत्रण समेत, उपाविशित प्रविष्ट हुई, चितेन अंशेन अपनी अंश चेतना समेत, येन जिससे, असौ जीव, विज्ञानम विशिष्ट ज्ञान, प्रतिपद्यते अनुशीलन करता है। ये अनुवाद पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई, तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। ये अनुवाद मेरे साथ दोहराइए। तत्पश्चात तत्पश्चात जब विराट रूप से जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई, तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। तो संक्षिप्त में इस धन्यवाद। तो इस श्लोक का परपट नहीं है, फिर भी संक्षिप्त में हम समझते हैं इसको। तो इस श्लोक में मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि जब भगवान की चेतना अलग से प्रकट हुई, तब महातत्व जो प्रकृति का पहला परिवर्तन है, उस चेतना के साथ
विराट पुरुष में प्रवेश करता है। तो महातत्व जो है उसमें बुद्धि, अहंकार और तीनों गुणों के बीज होते हैं, लेकिन जब तक भगवान की चेतना उसमें प्रवेश न करे तब तक वह निष्कर्ष है। तो चेतना जो है पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, चेतना पदार्थ को सक्रिय करती है। तो भगवान की चेतना के प्रवेश से ही जीव विशिष्ट ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर पाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड जीवित होता है। तो इस श्लोक में हमें ये पता चलता है कि चेतना जो है पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती है और चेतना पदार्थ को सक्रिय करती है। तो यही है इस श्लोक का संक्षिप्त में जो हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं, इसमें भी परपट नहीं है। तो हम यहाँ तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग लोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो इस श्लोक में भी परपट नहीं है। तो विराट पुरुष, इस श्लोक में विराट पुरुष के अंगों से लोकों का प्रकट होना कहा गया, बताया गया है। और मैत्रेय ऋषि यहाँ पे बताते हैं कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से अलग अलग लोक प्रकट होते हैं। सिर से स्वर्ग लोक, क्योंकि सिर सत्व का प्रतीक है और देवता सत्व से उत्पन्न होते हैं। पैरों से भूलोक माने पृथ्वी, क्योंकि पैर गतिशीलता और रजोगुण का प्रतीक है। तो मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होते हैं। और नाभि से आकाश भुवरलोक, यह वह सूक्ष्म क्षेत्र है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है कि विराट पुरुष का शारीरिक मानचित्र है, यही है इस श्लोक में जो हम पढ़ सकते हैं। तो आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28। तो इस श्लोक में मैं अनुवाद पढ़ता हूं। देवता गण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण
अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रमाकांत पांडे प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवद गीता 14वें अध्याय का 14 से 15 श्लोक में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित है वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत हैं वे मध्य लोकों में पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुण से पूरित हैं वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सतोगुण में अति बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोकों में स्थित रहते हैं। मनुष्य से भी नीचे पशु है, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गौएं, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के विकास से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमो गुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं, और सत्व उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधपतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो इस श्लोक में मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि देवता क्यों स्वर्ग में रहते हैं और मनुष्य पृथ्वी पर। देवता अत्यंतिक सत्व से युक्त होते हैं, माने उनका सत्व अत्यंत विकसित होता है, इसीलिए वे स्वर्गलोक में स्थित होते हैं। और मनुष्य जो है वे रजोगुण से प्रभावित होते हैं। कर्म, गतिविधि, संघर्ष, इच्छाएं, इसीलिए वे पृथ्वी पर रहते हैं जो कर्म भूमि है। तो प्रभुपाद जी यहाँ भगवत गीता का 14.14 और 15 का उल्लेख करते हैं, जहां पे कहा गया है कि सत्व का विकास उच्च लोकों में होता है और रजस का विकास जो है वो मध्य लोकों में होता है, और तमस का विकास अधोलोक या पशु योनि होता है। तो ये ब्रह्मांड का नैतिक ढांचा है। ऐसा है कि चेतना के स्तर के अनुसार स्थान मिलता है। तो चेतना जो है उसके स्तर के अनुसार हमें स्थान मिलता है, जीवों को अपना अपना स्थान मिलता है।
और इस पर्पट में बहुत ही सुंदर तरीके से पशु और मनुष्य का संबंध भी बताया गया है। अगर मनुष्य रजोगुण में है और पशु तमोगुण में है, तो पशु पृथ्वी पर क्यों रहते हैं? उन्हें अधोलोकों में क्यों नहीं भेजा जाता है? तो ये प्रश्न उठता है। तो कोई बात इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इट विल बी नाइस। चर्चा करने का विषय है, क्योंकि पशु और मनुष्य का संबंध है। और अगर मनुष्य रजोगुण में है और पशु जो है तमोगुण में है, तो पशु पृथ्वी पर क्यों रहते हैं? उन्हें तो अधोलोकों में क्यों नहीं भेजा जाता? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा है कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हमें नए कर्मफल बनाने का चांस मिलता है। बाकी सभी योनियां हमारे पिछले कर्मफल के हिसाब से बस एक चक्र पूरा करने के लिए होती है। तो शायद यही वजह है कि पशुओं का तमोगुण के हिसाब से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता और उनके नीचे के लोकों में उनको नहीं भेजा जाता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन वेरी नाइसली सेड। बट ऐसा है कि ये पशु जो है तमोगुण है। सी, अभी जब हम देख रहे हैं पूरा का पूरा क्रिएशन जो है, जब हम देख रहे हैं इसको, तो कहा गया है कि रजोगुण, क्योंकि मनुष्य जो है रजोगुण में है, तो उन्हें पृथ्वी लोक में भेजा गया है, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स में भेजा गया है। लेकिन ये भी हरे कहा कृष्ण। गया है। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यह भी हो सकता है कि ये पृथ्वी लोग जो है वो मिश्रित कर्म भोग करने के लिए, जो योनि है वो मिश्रित कर्म भोग करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए पशु जो है वो भी मिश्रित कर्म ही भोग कर रहे हैं और नीचे उतना अधिक पाप नहीं किए, इसलिए नीचे नहीं गए। इधर पशु जन्म भोग करते करते उसका जो पाप जो है वो क्षय होते होते वो मनुष्य योनि लाभ कर सकते हैं, ऐसा। हरे कृष्ण। आपको वेरी ये नाइस, करने के लिए वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन जो आपने दिया। तो आपने जो पॉइंट यहाँ पे बताया, उसका ये तात्पर्य है कि ये जो हरे हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पशु भी तो अलग अलग गुण के होते हैं, जैसे गाय सतोगुनी होती है और जो ये भी शेर एक है अच्छा कुत्ता है पॉइंट है। ये भी एक ना। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। गाय तो ये तो है अभी भी सत्वगुणी उसकी। है। करेक्ट। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना। आज्ञा जी, प्रभु जी। प्रभु जी, यह प्रश्न प्रश्न को गहराई से लगता है। बड़े आम 1 किलो में 4 ही चढ़ते, तो 8 चढ़े हैं तो 2 किलो होंगे फिर। भगवत गीता और भागवतम और कर्म सिद्धांत के आधार पर इसे समझा जा सकता है प्रभु जी। पशु तमोगुण में होते हैं पर वे नए पाप नहीं करते हैं प्रभु जी। वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल भोग रहे होते हैं, अर्थात उन्हें भोग योनि कहा जाता है। इसलिए उन्हें उन्हें अधोलोक नहीं भेजा जाता। और संक्षिप्त में प्रभु जी, किंतु जिसे और आगे समझना चाहते हैं, जिसे तो मनुष्य कर्म योनि है किंतु पशु भोग योनि है। तो मनुष्य को विवेक और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षमता मिली है प्रभु जी, इसलिए वो अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। जबकि पशु मुख्यतः अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कार्य करते हैं।
उन्हें धर्म अधर्म का कोई विवेक नहीं होता है। तमोगुण अधोलोक एक ही बात नहीं है प्रभु जी। तमोगुण का अर्थ है अज्ञान, जड़ता और आलस्य, और अधोलोक अर्थात नरक उन जीवों के लिए है जिन्होंने जानबूझकर पाप कर्म किए हैं। उनके फल का भोग प्रभु जी उनको करना पड़ता है। पशु पशु शरीर जो है वो स्वयं एक दंड स्वरूप मिलता है प्रभु जी। जो जीव अपने कर्मों से नीचे गिर जाता है उसे पशु योनि मिल सकती है। उस पशु योनि में रहकर वो अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है। इसलिए नरक से भेजना आवश्यक नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य रजोगुण में रहकर पाप कर्म करता है तो मृत्यु के बाद उसके अनुसार नरक, अधोलोक या निम्न योनि की कीट पतंग आदि की योनि मिल सकती है प्रभु जी। क्योंकि 14वें अध्याय का 18वें श्लोक में लिखा हुआ है प्रभु जी, भगवान कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा। अर्थात जो तमोगुण में स्थित है वे अधोगति को प्राप्त होते हैं प्रभु जी। ये अधोगति योनियां जो है दुखद अवस्थाएं या नरक कर्मानुसार भोग सकती हैं। प्रभु और जी आपने 16वें वेरी अध्याय नाइस, हाँ जी बताइए, सॉरी। 16वें अध्याय 16वां अध्याय भी भगवान बोल रहे नहीं नहीं, इनका हैं 19 कुछ बता रहे हैं, उसके बाद आप जरूर बताइए, सुन लेते हैं। 16वें अध्याय भगवान बोल रहे हैं प्रभु जी 19 और 20 श्लोक में कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले पापी जीव बार बार आसुरी और नीच योनि जन्म लेते हैं। जैसे प्रभु जी यदि कोई मनुष्य चोरी, हिंसा और नशे में जीवन बिताता है तो उसे पहले नरक में पाप फल भोगना पड़ता है। फिर वह कुत्ता, सुअर आदि निम्न योनियों से मिल सकती है। लेकिन एक बार जब पशु योनि मिल जाती है तो वह नया पाप नहीं कर रहा होता है, बल्कि बल्कि पूर्व जन्म कर्म का करेक्ट फल है फल भोग रहा होता है। प्रभु जी, तो धन्यवाद, निष्कर्ष आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, वेरी नाइसली आपने कोट भी किया, सो वेरी नाइसली पुट। विनोद कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी मेरा कहना था, जो गरुड़ है वो पशुओं की योनि में आते हैं, या गरुड़ जो है विष्णु भगवान का ये है, मतलब वाहन है, उनका वाहन है, करेक्ट प्रभु जी। करेक्ट। तो वो भी पशु है प्रभु जी। और दत्तात्रेय भगवान के जो है, जो कुत्ता जो है वो उनका गुरु है प्रभु जी। तो कुत्ता भी तो पशु ही है प्रभु जी। प्रभु जी, तो प्रश्न ये है कि देखिए, जी जैसे कि ये जो पॉइंट्स रखें उसमें बहुत ही सुंदर अत्यंत पॉइंट जो निकलता है, पशु जो है वो तामसिक है लेकिन पापी नहीं है, तामसिक है। तो अधोलोक जैसे कि अतल, वितल, सुतल, ये इन लोकों में अत्यंत पापी और हिंसक और दैत्य स्वभाव वाले जीवों के लिए है। ये जो पशु होते हैं वो तामसिक है लेकिन वो पापी नहीं है, निर्दोष है, ठीक है। तो हिंसा का उद्देश्य नहीं रखते हैं, तो इसीलिए उन्हें अधोलोकों में नहीं भेजा जाता। और दूसरा पॉइंट ये है कि पर्पट में प्रभुपाद जी पर्पट में टीका में बहुत ही सुंदर लिखते हैं, कुछ पशु जो है मनुष्य के साथ रहते हैं, जैसे कि गाय, घोड़े, कुत्ते, ये सब मनुष्य के साथ रहते हैं और मनुष्य की सुरक्षा में रहते हैं, करेक्ट है ना। तो मनुष्य, पशु जो है मनुष्य से सीखते हैं और मनुष्य की करुणा से ऊपर उठते हैं, तो उन्हें ऊपर उठने की चांस दिए हैं भगवान और मनुष्य के कर्म क्षेत्र का हिस्सा है। अगर उन्हें अधोलोकों में भेज दिया जाए तो उनके उत्थान का कोई मार्ग नहीं बचेगा। तो ये जो पृथ्वी है कर्म भूमि है, मनुष्य और पशु दोनों के लिए पृथ्वी ही है वह स्थान है जहां, जैसे
एक भक्त ने अभी बताया, मनुष्य ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है अपने कर्म से। माने ये जो क्रिएशन है, ये जो पूरा का पूरा विस्तार जो हुआ है, किस लिए हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि हम अपना ओरिजिनल स्वरूप में, जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडीज है, उसमें हम भगवान का सेवा, नित्य सेवक है हम लोग। लेकिन एक ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है हमारे, एक इच्छा होता है कि हमें भगवान से अलग होकर हमें कुछ एंजॉय करना है। तो इसीलिए ये सब पूरा का पूरा क्रिएशन जो है, सभी जीवों को भगवान और एक चांस दे रहे हैं उनको, इस क्रिएशन, ये भौतिक क्रिएशन से वे जाके एंजॉय कर सकते हैं, वो एक है। नहीं तो उसी क्रिएशन को का लाभ उठा के वे फिर भगवान के नित्य सेवक बन सकते हैं, वापस जा सकते हैं। तो इस पूरा क्रिएशन का एक ही मकसद है, वो मकसद है कि सभी जीवों को अपने कर्म अनुसार और अपना इच्छा अनुसार उन्हें एक शरीर दिया जाता है और उन्हें डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स, जैसे यहां इस श्लोक में बताया गया है, उन्हें रहने का एक अनुकूल व्यवस्था जो है भगवान खुद करते हैं। तो जीव को दो चॉइसेस है। एक चॉइस है कि वे एंजॉय करें भगवान से अलग होकर, भगवान को भूलना चाहते हैं तो वो भूल सकते हैं, तो उसकी सुविधा देते हैं। जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो शरीर है, उसमें हम नहीं कर सकते हैं, हम भगवान को भूल नहीं सकते हैं उस शरीर में। इसीलिए यहाँ पे एक पोषक दिया जाता है, जैसे कि मनुष्य की शरीर या कुत्ते की शरीर या कुछ भी जो अपना कर्म है उसके मुताबिक और इच्छाओं के मुताबिक उसे दिया जाता है। तो उस शरीर से दो बात हो सकता है। एक है भगवान को भूलकर एंजॉय करना, दूसरा है इस शरीर को के लाभ, जो मनुष्य शरीर को के लाभ उठाकर वे भगवान के पास वापस चले जाएं। सो ये भौतिक क्रिएशन जो है दो चॉइसेस देते हैं जीव को। तो इसीलिए मनुष्य जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, और पशु ऊपर उठ सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कर्म को प्रभावित करते हैं, और अधोलोकों में ये व्यवस्था नहीं है। पशु जो है तामसिक है, लेकिन गहरे तमस वाले नहीं है। तो इस श्लोक में कहा गया है देवता सत्व में है, मनुष्य रजस में है और पशु जो है तमस में। लेकिन ये तमस निर्दोष तमस है। तो ये वह तमस नहीं है जो हिंसा, पाप और दैत्य स्वभाव से जुड़ा हो। इसीलिए पशु पृथ्वी पर रहते हैं, अधोलोकों में नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ इस जरूर बताइए ना प्लीज। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें जो है नेक्स्ट श्लोक में जैसे बोला गया है, उसका परपट में पढ़ी थी, तो उसमें मतलब लिखा हुआ था कि तमोगुण में है, लेकिन वो फिर भी जो है कि पृथ्वी लोक से ऊपर रहते हैं, जो भूवर लोक शायद है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि मतलब कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कि तमोगुनी लोग हैं, लेकिन वो फिर भी रजोगुनी जो लोग हैं उनसे ऊपर रह सकता है। तो मतलब क्योंकि
जैसे ये पढ़ा था मैंने कि जैसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर, हाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं जैसे कोई मीट खाता है तो मतलब वो भगवान उनको जानवर का शरीर देता है जो मीट खाता है, जैसे बाघ का शरीर दे दिया, टाइगर का, है ना, क्योंकि वो तो मनुष्य जीवन का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं सही से। तो या फिर जो अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं उनको पेड़ का शरीर दे देते हैं। तो ये सारे मतलब जो गलत कर्म करते हैं तो उनको इन जनरली पशु शरीर दे देते हैं। जो सोते रहते हैं, दिन भर काम नहीं करते हैं, तो उनको भालू का शरीर दे देते हैं, ऐसे करके। तो मतलब जो है कि पशु बनते हैं तो वो भी एक एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उनको कुछ इच्छाएं भी उनका हो सकता है कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ये कर्मों की बात है। और कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कभी कभी, जो नेक्स्ट श्लोक का परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस हिसाब से भी हो सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है। तो नेक्स्ट श्लोक जब हम उसमें प्रवेश करेंगे तो इसका इसका भी हम चर्चा करेंगे उधर, क्योंकि उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों बताया गया है वो हम चर्चा करेंगे। तो वेरी नाइसली पुट, धन्यवाद माता जी। सो इस श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि पशु जो है तामसिक है लेकिन पापी नहीं है। अधोलोक पापी और दैत्य स्वभाव वाले जीवों के लिए है। तो पशु मनुष्य की करुणा और संगति से ऊपर उठते हैं, इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर रखा जाता है जहाँ उनका उत्थान का मार्ग खुला रहता है। और इस परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मनुष्य में रजस और तमस अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो वो अनावश्यक पशु हत्या में लग जाता है। तो ऐसे मनुष्य सत्व की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका पतन जो है निश्चित है। क्योंकि पशु हत्या और अनावश्यक पशु हत्या नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि लोगों की ऊंचाई जो है चेतना से तय होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऊपर नीचे लोक जो भौगोलिक ऊंचाई से नहीं, लेकिन उनका कहने का यही तात्पर्य है कि चेतना की ऊंचाई से तय होते हैं। तो ये बहुत ही अत्यंत गूढ़ और सुंदर सिद्धांत है। तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं माता जी, इफ पॉसिबल। धन्यवाद माता जी। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं। जो जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। संध्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सादर पंचांग प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आकाश का यह मध्य भाग भुवर लोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं
जो लोग सतोगुण में स्थित है वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। नहीं, थोड़ा और है प्रभु जी। ये हाँ, जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थिर रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। सादर दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे देखिए, भागवत कोई कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड का वास्तविक नक्शा है। यहां तक कि भूत प्रेत जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए भी भगवान ने एक निश्चित स्थान बनाया है। तो भगवान की सृष्टि में अव्यवस्था नहीं है, पूर्ण व्यवस्था है। तो हर जीव को उसके गुण और कर्म के अनुसार स्थान मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सत्व गुण जो है वो देवताओं के लोक में प्रवेश करते हैं और रजोगुणी लोग जो है मानव समाज और तमोगुणी जो है पशु या भूत प्रेत या भूत प्रेत जीवन जो है। और तो ये कोई भावना नहीं है, ये एक नियम है। जैसे सरकार में योग्य व्यक्ति जो है होता है वो उच्च पद में पाता है और सामान्य व्यक्ति सामान्य पद और अपराधी जो है जेल में जाता है। तो उसी प्रकार गुण ही ब्रह्मांड की सरकार है। आप गुणों को धोखा नहीं दे सकते हैं। आपकी चेतना ही आपका गंतव्य जो है वो तय करती है। तो रुद्र यहाँ पे भगवान शिव यानी विनाश के अधिपति है। उनके पार्षद वे जीव है जो हिंसा, अंधकार, नशा और विकृत प्रवृत्तियों में डूबे रहते हैं। माने ये बहुत ही पापी लोग जो है उन्हें ऐसा शरीर मिलता है। तो ऐसे जीव न मनुष्यों के बीच रह सकते हैं और ना ही देवताओं के बीच। इसीलिए उन्हें एक मध्य क्षेत्र जो भुवरलोक वहां दिया जाता है। तो ये जो भूत प्रेत जो है वो कल्पना नहीं है, वे जीव है, वे भी एक जीव है जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो सूक्ष्म शरीर में फंस गए हैं। तो यहाँ पे जैसे माता जी ने अभी ये पॉइंट रेस किया, तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी एक कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? तो तात्पर्य में ये कहा गया है कि आकाश का यह मध्य भाग भुवरलोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा शील जीव गोस्वामी दोनों ने की है।
तो भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं, और जो लोग सतोगुण में स्थित है वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना पड़ता है कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। करेक्ट। तो आप थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए माता जी, ये थोड़ा पढ़ पढ़ना चाहता हूँ। और जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है वे पशु या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहा गया है कि इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। तो इसका समझना हमें, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है एक्चुअली उधर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में जो कहा गया है उधर भगवत गीता रेफर करते हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, जहां पे भगवान कहते हैं सत्व माने ऊंचे लोक, और रजस जो है वो है मध्य पोर्शन, और तमस जो है वो नीचे के लोग जो पाताल लोक है वैसे लोगों को रेफर किया है। तो यहाँ पे भगवत गीता में 3 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ द यूनिवर्स को कहा गया है, और इस श्लोक में, भागवतम के इस श्लोक में विराट पुरुष के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे विराट पुरुष जो है उनके जो डिफरेंशिएशंस रहता है, माने ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट भगवान के कॉस्मिक बॉडी में कहीं डिफरेंट जगह पे कहा गया है। तो मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। तो ये जो आकाश है वो भूमि माने पृथ्वी लोक और भूवर लोक हेवन के मध्य में कहा गया है। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये पर्पट में है। तो इस श्लोक में ये विराट पुरुष भगवान का जो ब्रह्मांडीय रूप के वर्णन में भागवत बताता है कि ब्रह्मांड के अलग अलग लोक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से उत्पन्न होते हैं। तो देवताओं के लोग ऊपर के अंगों से, पृथ्वी लोग नाभि के आसपास के भाग में, और नीचे के लोग पैरों के भाग से, और बीच का आकाश जो है वो भगवान के नाभि क्षेत्र जो है उसी को भुवरलोक कहा गया है, माने उनको उसको मिडिल पोजीशन जो है उसे दिया गया है। और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आकाश को भुवरलोक कहा गया है। तो भागवत कहता है ये क्षेत्र जो है विराट पुरुष की नाभि से उत्पन्न होता है,
और यहाँ सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं और विशेष रूप से रुद्र के पार्षद, भूत प्रेत पिशाच आदि। और ये जीव जो है तमोगुण में अत्यधिक डूबे होते हैं, इसीलिए उन्हें स्थूल शरीर नहीं मिलता और वे इसी मध्य आकाश में रहते हैं। इसीलिए भागवत का मध्य क्षेत्र को भुवरलोक कहा गया है। तो ये जो है इस भागवत में जो कहा गया है वो एक जियोग्राफिकल वर्णन रहता है, और लोक लोक जो है कहाँ स्थित है इसे बताया गया है। तो भागवत जब मध्य क्षेत्र कहता है तो वह भुवरलोक की बात कर रहे हैं, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आकाश जो विराट पुरुष की नाभि से ये जो क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। तो यही है इसका। और भगवत गीता का जो था वो इस यूनिवर्स के अंदर जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ वेरी क्लियरली बता रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं है। जो भगवत गीता बोल रहे हैं वही भागवत जो है विस्तार करके उसको बता रहे हैं। तो यही है इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में जो जीव गोस्वामी जी बताया है, तो या वो भी बता रहे हैं कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो श्रीमद् भागवतम, ये जो भगवत गीता है एक डिक्शनरी है, और ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। तो जो कॉस्मोलॉजिकल रेफरेंसेस है इट्स परफेक्ट। जो श्रीमद् भागवतम हमें जो ये ज्ञान दे रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो आज हमने 4 श्लोक कवर किए हैं। तो इन 4 श्लोकों में हमने देखा कि विराट पुरुष चेतना से सक्रिय होता है और उसके अंगों से लोक जो है प्रकट होते हैं। देवता जो है सत्व से और मनुष्य जो है रजस से, और रुद्रगण तमस से उत्पन्न होते हैं। तो भुवरलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सूक्ष्म क्षेत्र है जो इस श्लोक में बताया गया है। और गीता और भागवत एक दूसरे के पूर्णतः एक दूसरे के अनुरूप है, और ब्रह्मांड जो है चेतना आधारित है, नैतिक और आध्यात्मिक संरचना से नहीं, संरचना है। तो ये चर्चा हमें सृष्टि की गहराई, गुणों की शक्ति और भगवान की विराट व्यवस्था का दर्शन कराती है। तो यही हम थैंक यू वेरी मच। शायद सर्टेन पॉइंट्स मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी पेशेंस के लिए मैं आभारी हूँ। जितना हो सके क्लैरिटी के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, नहीं तो अगले सेशन में वी कैन कंटिन्यू। तो यहीं रोकते हैं, आज समय थोड़ा ओवरशूट हो गया तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो हरिनाम की महिमा का एक श्लोक जो है मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो है ये तो हम सब जानते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम नामैव केवलम कलाओ नास्तेव नास्तेव
नास्तेव गति रण्यता। तो कलयुग में भगवान के नाम ही एकमात्र आश्रय है। न तप, न यज्ञ, न दान, केवल हरिनाम ही मन को शुद्ध करता है और भगवान से सीधा संबंध जोड़ देता है। तो आइए हम सब अपना हाथ ऊपर उठा के बहुत ही प्रेम से हरिनाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।